सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। Namaskar. Today we have Srimati Uma Anandanji joining us from Chennai. First, I would like to go to Umaji. Umaji, from Tamil Nadu point of view, you can explain how HRNC is functioning and what is their role in temple administration. So you please you can explain us. I can definitely speak about the pathetic state of the Tamil Nadu temples under the control of the Hindu Religious Endowment Act, shortly called the HRNC. See, they control all the temples in Tamil Nadu. Even if they are private temples, if they are trust-operated temples, everything comes under their control. They have a namesake, like the Adinams, the Dharmapuri Adinam or Adudurai Adinam, who are namesake heads. But the actual control rests with the HRNC. And in Tamil, it is called Hindu Arannilayathurai. Aram means Dharma. So normally we tell it is a non-dharmic organization, the Hindu Non-Dharmic Endowment Board. Dharma has nothing to do with their functioning at all. They are about when the British left us, there were about 58,000 temples. But now some temples are missing. As per their records, there are only about some 48,000 temples or something now. So we don't know what happened to the rest of the temples. That is one big thing. Second, and the temples will be so well administered. Lands are not there. To the, nearly about 5 lakh and odd acres are missing as lands, agricultural lands. And if they have the properties as buildings or something, the rent value they get is minuscule. Supposing the market rent is about 30,000 a month for a building. I'm just telling in a random way. 30,000, the rent collected is about 30 rupees a month. Yes, Umaji. Whatever you explained, it's yes. That is so shocking, and unfortunately, it doesn't get highlighted in any news media or no one highlights it. It's lucky that there are warriors like you, or there are few Jagrut Hindus who are fighting for the cause. So through today's debate, we want to take it to the national level so that larger people or mass can join in this movement. And it is our dharmic duty, or I will say the first duty, to protect our temples. Thank you, Uma जी. मैं सुनील जी के और जाऊंगा. सुनील जी से पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में आपका संगठन अनेक वर्षों से मंदिरों के सरकारीकरण का विरोध कर रहा है. आपने जो सरकारीकरण के दुष्परिणाम देखे हैं, जिस कारण आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कृपया बताएं. आज के इस डिबेट में हमने जो एक मंदिरों के संदर्भ में विषय रखा है, इसके बारे में पिछले कई सालों से हिंदू जनजागृति समिति हो और सभी समविचारी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन हो, जिनके माध्यम से हमने महाराष्ट्र में मंदिर सरकारीकरण का विरोध किया, जिसमें सरकार जो हिंदुओं के ही मंदिर केवल नियंत्रण में लेती है. अगर मंदिर सरकारीकरण होता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, पिछले 2010 से जब यह अभियान शुरू किया तो उसमें से कुछ बातें सामने आई. जैसे कि सरकार ने अगर मंदिर नियंत्रण में लिया तो वो क्यों लेती है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों को वहां उनको बिठाना होता है, उनको संतुष्ट करना होता है, इसलिए मंदिर पे लेते हैं. मंदिरों में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है. कई उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा. यहाँ पे मंदिरों की भूमि हड़प ली जाती है, मंदिर के निधि का उपयोग वहां पे सरकारी कामों के लिए किया जाता है, और उसके साथ साथ मंदिरों का धन जो है, जो देव निधि है, जिसका उपयोग केवल और केवल मंदिरों के कारण, मंदिरों के लिए, धर्म प्रसार के लिए, धर्मों की शिक्षा के लिए करना चाहिए, वो अन्य धर्मियों को बांटा जाता है. इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति करके एक समिति है, सरकार नियुक्त समिति है, जो 1969 में 1969 में निर्माण हुई, जिसमें 3067 मंदिर आते हैं 5 जिलों के. उस पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति का ही उदाहरण लेते हैं तो जब हमने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी
तब एक बार जानकारी आई 18,000 एकड़ जमीन है मंदिर, सब 3,067 मंदिर के पास। फिर जानकारी आई 23,000 एकड़ जमीन है, फिर आई 25,000 एकड़ जमीन है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें जमीन के बारे में जो घोटाला हुआ है, करीबन 7,000 एकड़ से अधिक जमीन घोटाला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके विरोध में जब अभियान चलाया तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र और पूरे अनेक राज्यों से जो देवी भक्त थे वो इकट्ठा आए, बहुत बड़ा मोर्चा वहां पे निकाला गया और लोगों ने रास्ते पे आके उसका विरोध किया। तब जाके मंदिर में हो रहे घोटालों के बारे में, जैसे जमीन के बारे में मैंने बताया, मंदिर की बहुत सारी जमीन पे वहां पे जो माइनिंग का काम चलता है उसका भी जो रॉयल्टी मंदिर को आना चाहिए वो भी 1985 से मंदिर को नहीं मिला है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मंदिर के रजिस्टर में जो जेवर होते हैं, जो नोंद होनी चाहिए, वो भी बहुत सारी बार नहीं हुआ है। और सबसे गंभीर बात तो यह है कि 1969 से लेके करीबन 2004 तक जो बैलेंस शीट होना चाहिए था, यानी 32 इयर्स बैलेंस शीट ही वहां पे नहीं किया गया था। उसके साथ साथ अगर पंढरपुर का मंदिर हम देखते हैं तो 1250 एकड़ जमीन इस मंदिर के रिकॉर्ड पे थी, लेकिन वो कहाँ पे है, किसके पास है, उसका पैसा कहाँ पे जा रहा है, उसका उत्पन्न कौन ले रहा है, इसके बारे में कोई भी उनके पास जानकारी नहीं। फिर जब 2013 में हिंदू जन जागृति समिति और हिंदू विधिज्ञ परिषद के माध्यम से हमने अभियान छेड़ा, आंदोलन शुरू किया, तो उसके बाद आज की स्थिति यहाँ पे ये है कि मंदिर के संदर्भ में जो अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार वहां पे पाए गए, जिसमें से एक दो उदाहरण मैं देता हूं आपको कि मंदिर की 1250 एकड़ जमीन रिकॉर्ड पे नहीं थी, मंदिर का गोधन कसाईयों को बेचा गया था, उसके साथ साथ जो नोंद होनी चाहिए वहां पे तो वो नोंद भी वहां पे नहीं थी, जेवरों के बारे में हो या फिर जो वहां पे अर्पण आता है उसके बारे में हो। तो ये पंढरपुर मंदिर के बारे में हो गया। उसके साथ साथ शिरडी का मंदिर का एक उदाहरण है जहां पे महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल वहां पे 1 घंटे के लिए आने वाली थी, तो उनके दौरे के लिए 93 लाख रुपए खर्च करके वहां पे रास्ता बनाया। उसी मंदिर से सरकार के कामों के लिए विकास के नाम पे करीबन 500 करोड़ रुपए उस परिसर में जो एक नीलवंडे डैम धरण बनने जा रहा था, तो उसके उपयोग के लिए सरकार ने उसको दे दिया। देने का विचार वहां पे किया गया, तो हिंदू जन जागृति समिति और हिंदू विधिज्ञ परिषद ने बहुत बड़ी प्रमाण में विरोध किया। अभी उसके ऊपर न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है। तो ये शिरडी के मंदिर का होगा। ऐसे बहुत सारे मंदिर है, तुलजापुर है, सिद्धिविनायक मंदिर है, ऐसे अनेकों मंदिरों में जो भ्रष्टाचार पाया गया, ये सरकारीकरण का दुष्परिणाम है और इसके बारे में पूरे महाराष्ट्र भर में हम विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में अभियान छेड़ा गया है और ये प्रश्न उठा रहे हैं कि मंदिरों के बारे में अगर हर जगह पे मंदिरों का सरकारीकरण होता है, सरकारीकरण का यह प्रयास होता है, तो उसका सभी विरोध करें। इतना ही मुझे यहाँ पे बताना था। धन्यवाद सुनील जी। आपने जो वस्तुस्थिति हमें बताई, जैसे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, एक एक मंदिर में 7,000, 2,000, 5,000 ऐसे एकड़ की जमीन आज मिसिंग है, तो ये तो भ्रष्टाचार है। तो आपके माध्यम से आज समाज के सामने आ रहा है, तो संगठित रूप से ऐसे ही आवाज हमें उठाना चाहिए। इसका गांभीर्य आपके उद्बोधन से हम सभी को ध्यान में आया। नाउ लीगल एक्सपर्ट विथ अस, एडवोकेट वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप अधिवक्ता है, आप मंदिर के सरकारीकरण के विषय में कानून के दृष्टि से या संविधान की दृष्टि से किस प्रकार से अयोग्य है या हिंदुओं पर कैसे अन्याय हो रहा है, तो इसके बारे में हमें बताएं। जी नमस्कार। जैसे आपने पूछा संविधान की दृष्टि से या कानून की दृष्टि से, तो इसके शुरुआत में जाना पड़ेगा। 1947 में हमें स्वातंत्र्य मिला और जो संविधान बना है, अब ये संविधान जब बना और पार्टीशन हुआ, तब एक माहौल ऐसा था, जो नेता थे उनका कहना ऐसा था कि जो मुसलमान है वो हमारे साथ रहे, जो बाकी धर्मों का है वो हमारे साथ रहे, उनका धर्म उन्हें पूरा फ्रीडम जो है, उनको जैसे रहना है रहना देंगे, लेकिन हम सेक्युलर रहेंगे। तो ये जो एक विचित्रता है वो संविधान में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई है। अब छोटा आर्टिकल 25 लेंगे या आर्टिकल 26 लेंगे, ये एक एक सेक्शन या आर्टिकल का डिसेक्शन करके शायद ये बात नहीं खत्म हो जाएगी। वी नीड टू रिस्ट्रक्चर द होल सिस्टम एज फार एज द टेम्पल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। अब कानून की बात अगर हम करते हैं तो ये दो चीजें उसमें आती है। वी आर इन अ प्रिकारियस कंडीशन, सो एज टू से। देखिए, कानून अगर कठोर हो तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अच्छे लोग चाहिए।
और अच्छे लोग नहीं है तो अच्छा कानून भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वी नीड बोथ थिंग्स, गुड लॉज एज वेल एज गुड पीपल हु विल इंप्लीमेंट देम, एंड एज ऑफ नाउ वी लैक ऑन बोथ काउंट्स। हमारे पास दोनों चीजें नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हर जगह पे जहां पे सरकार मंदिर अधिग्रहण करता है तो सरकार कहता है वी आर टेकिंग ओवर द टेम्पल मैनेजमेंट फॉर बेटर मैनेजमेंट। अब ये बेटर मैनेजमेंट क्या चीज है भाई? जहां पे सरकार खुद अपनी कंपनीज ठीक से नहीं चला पा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, तो ऐसी जगह पे आप टेम्पल का बेटर मैनेजमेंट कौन से हिसाब से करेंगे? यू नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट। आप जानते हैं अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोट किया जाता है, अगर बुरा काम करता है तो उसको या तो सस्पेंड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट अगर टेम्पल के बारे में कुछ करना चाहती है तो गवर्नमेंट को कौन लगाएगा? हु विल गवर्न द गवर्नमेंट? ये सवाल आज बनता है। फिर इसके लिए नए कानून की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें एक हिंदू दबाव गुट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप क्राइम के हिसाब से देखें, जो भी मेरे पहले के मान्यवरों ने बताया, इस एवरीवेयर इन एवरी स्टेट temples are being looted. There is no reason to talk about that. Facts will change, amounts will change, but the whole pattern is the same. अब इसमें क्या होता है, कोई कलेक्टर आके वहां पे बैठता है, आईएएस ऑफिसर आके बैठता है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर वहां पे आके बैठता है, कहीं पे जुडिशियल कैडर से जजेस वहां पे मैनेजमेंट के लिए आते हैं। द क्वेश्चन इज whether an IAS officer or an officer from revenue department, whether he is competent to understand the intricacies of temple management? No. उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसका अप्रोच क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, हम उसके आधार पे आप रेवेन्यू ऑफिसर को आप टेम्पल मैनेजमेंट कैसे दे सकते हैं? वेदर इट्स इनफ क्राइटेरिया? नो। फिर भी ये इस तरीके से होता है। अब तीसरी बात इसमें ऐसी है कि ऐसी जगह पे अगर कोई आके बैठेगा, जैसे इंडियन पिनल कोड में है, अगर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर के नियंत्रण में रेप होता है, हॉस्पिटल में वहां का जो इंचार्ज है वो ऐसा कुछ करता है, तो उनके लिए ज्यादा पनिशमेंट है। कई कानून ऐसे हैं कि पुनः अगर सेम ऑफेंस होता है तो ज्यादा पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोई ऐसी चीज ही नहीं है भाई, कितना भी लूट लो, कुछ भी कर लो, सब प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज बदलने के लिए कानून में ऐसे भी चीजों का अंतर्भाव होना चाहिए। और ये तो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कब क्या कहा या प्रिवी काउंसिल ने कब क्या कहा, इसके इंटरप्रिटेशन की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब उत्तराखंड का हाल ही में निकाल आया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसे चैलेंज किया था। अब उसमें जजमेंट में एक बात आती है, जो चार धाम टेम्पल एक्ट वहां पे बना, अब उसमें प्रोविजन क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर रहेगा वो चीफ मिनिस्टर होने के कारण ये चार धाम के जो टेम्पल कमेटी है उसका अध्यक्ष बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि चीफ मिनिस्टर होना क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है कि मंदिरों का प्रमुख विश्वस्ताप बने? भक्तों ने चुन के देना अलग बात है और आम जनता ने चुन के देना अलग बात है। तो ये जो सेपरेशन होना चाहिए, यह सेपरेशन वहां पे है ही नहीं। इस तरीके से ये सब चीजें चलाई जा रही है। एक बाजू में मंदिरों का धन इस तरीके से लूटा जा रहा है, बाहर लिया जा रहा है या सेक्युलर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी जगह पे वक्फ बोर्ड को सरकार पनप रही है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में 92,000 एकर्स ऑफ लैंड है, नॉट लेस देन 1 acre। 92,000 एकर्स ऑफ लैंड वक्फ बोर्ड possesses with zero income। अब इस वक्फ बोर्ड को, इस वक्फ ट्रिब्यूनल को पूरा मेंटेन सरकार करेंगी। किसके पैसे से करेगी? टैक्स पेयर के पैसे से करेगी। तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, जो हमें लोगों तक लेके जाना चाहिए। और इसके बारे में कोर्ट के अंदर, मीडिया के अंदर, रास्ते के ऊपर आंदोलन होने चाहिए। हर जगह पे हमें ये इशू लेके जाने की आवश्यकता है, ऐसे मैं मानता हूँ। जी वीरेंद्र जी, आपने सही एकदम सटीक भाषा में हमें बताया कि सरकार ये जो मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है या जो अन्याय हो रहा है, तो ये भेदभाव हिंदुओं के साथ ही हो रहा है। इस परिसंवाद से प्रेरणा लेकर आने वाले काल में मंदिर संस्कृति की रक्षण के कार्य के लिए अधिक गति प्राप्त होगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। और इस परिसंवाद में उपस्थित सभी मान्यवरों का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार।